Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. Good morning, all of you. I hope all okay. So let's start one video today. सो जहाँ हम कल कहाँ थे, हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रीड कर लिया और कुछ पॉइंट्स जो हमें एक्सपोर्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए। हमने 9 पॉइंट्स कल पढ़े थे एंड फ्यू पॉइंट्स आर इज राइट नाउ फ्रंट ऑफ यू. सो गाइज जस्ट प्लीज़ लिसन एंड केयरफुली प्लीज़ एंड मेक ए नोट्स each and every snapshot. Take snapshot and make a notes, and please ask me any question, any doubt, any if you have no any clarity, so please ask me via YouTube comments, via WhatsApp, via email, or if possible then call. So guys, there are some points. Number one point is that the first one is IEC, import and export code. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड गाइस? यू नो कि हमें कोई भी एक्सपोर्ट करने से पहले हमारी जो कंपनी, जिस कंपनी में मैं जो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, जस्ट स्मॉल एग्जांपल, कि रमेश इज़ हायर्ड बाय द ABC कंपनी दिल्ली. तो रमेश शुड चेक आवर कंपनी इज़ रजिस्टर्ड विद द DGFT and have import export code or not. If not, then immediately apply for the online at DGFT portal. So once he apply, within few days he will get the import export after giving the some documents. So what is the document for apply IEC? I will let you know in my next video. So please guys, this is the most important import export code. Second one is type of material. We should know what is our material, where we want to export and which we want to export. So guys, type of material का मतलब यही हो गया कि आपको वो चेक करना है कि विच RCMC यू रिक्वायर्ड. सो RCMC मीन्स जस्ट yesterday I told you, registration cum member certificate. This is the certificate you can take avail benefits, and what is the benefits I will let you know in my next video, because I cannot cover in all things in the one video. So I will let you know after that. So guys, so just I'm giving some example like iron and steel. For iron and steel products, you go for like this engineering products. So engineering products के लिए where you will approach EEPC, Export Engineering Promotion Council. They will provide you the registration cum member certificate, where you can avail some benefits, and where this certificate is required I will let you know in my next videos. Everything I will let you know, but just for your knowledge, what should you do for the export, and before export you should have something, you should have some knowledge on this RCMC, IEC, PO, everything. तो गाइस नेक्स्ट, लाइक अगर आपका आइटम कोई EPC लाइक गारमेंट्स आइटम्स है, यू आर इन गारमेंट्स कंपनी, तो वेयर यू अप्रोच AEPC, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. इफ़ यू हैव एनी प्रोजेक्ट कार्गो, यू शुड अप्रोच PEPC, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. तो गाइस ये जो हमारे प्रमोशन काउंसिल हैं, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट आइटम्स के लिए आपको RCMC प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्रेशन का मेंबर सर्टिफिकेट, वेयर यू कैन टेक अवेल सम बेनिफिट्स आल्सो. लास्ट इज वन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. इफ़ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, you can register with the FIO. FIO is Federation of India Export Organization, which provide you also RCMC, where you can export different types of products. तो कोई भी ये जो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, फॉर द अवेलिंग बेनिफिट्स. सो अगर आप कोई EPC स्कीम्स हैं, DGFT की स्कीम्स हैं, तो दे विल आस्क फॉर द RCMC, एंड दिस RCMC आपको आगे बहुत हेल्प करेगा. आगे बहुत मतलब डॉक्यूमेंट्स में आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, दे विल आस्क फॉर द RCMC, आर यू रजिस्टर्ड और नॉट. तो इस टाइप से आपके जो इशूज़ आएंगे, केसेस आएंगे, तो मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा. एज एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको आगे वीडियोस में शेयर करूँगा. ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी. तो ये जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए, आप किसी भी कंपनी में बैठे हो तो यू जस्ट आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट प्रमोशन काउंसिल और इमीडिएटली यू गेट द रजिस्ट्रेशन, राइट. तो आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है अपनी कम्युनिटीज़ के उसके बारे में जानने के बाद. तो गाइस दिस इज़ फॉर यू, एंड लेट्स गो इन द नेक्स्ट स्लाइड. होप ऑल क्लियर फॉर दिस वन. इफ नॉट, सो प्लीज़ कमेंट एंड मेक ए नोट and ask me via WhatsApp, via Gmail. Next slide. So HS code is a harmonized items. तो इसको हम कहते हैं HS कोड जो होता है एक आइटम का फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. और HS कोड जो होता है
that is the worldwide. So first 6 digit you will see the HS code is similar worldwide, almost 99% HS code will be same, first 6 digits, or 4 digits are damn sure. So लास्ट के 2 digit 3 digit 4 digit लास्ट 4 digit चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली टू द कस्टम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. सपोज जर्मनी में एक्सपोर्ट करने जाए तो वहाँ का कस्टम कोड अलग होगा, बट 4 digit और 6 digits विल बी सेम. तो ये आपको बहुत ध्यान करना है, ये एच एस कोड आपको पता ही होना चाहिए. बिकॉज अगर एच एस कोड कोई भी आइटम है आपका, एच एस कोड के अकॉर्डिंगली आपको ये पता कैसे लगेगा. मान लीजिए आपका कोई अप्रेयल्स आइटम है, गारमेंट्स आइटम है, कोई आयरन स्टील है, जस्ट पुट द नेम and you search on the Google as well, but most importantly you follow the CBEC custom tariff where I mentioned to whom will contact, follow CBEC custom tariff. जो भी custom का latest tariff होगा you just follow them, you just identify your HS code or item name, you just see, there will see, I will show you how to check. तो मैं वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन follow CBEC custom rule for HS code. ठीक है. सेकेंड DGFT फॉर इंसेंटिव. आपको HS कोड मालूम है तो नेक्स्ट आप कब जाओगे, DGFT के पोर्टल पे जाओगे. वहाँ उसको DGFT के फुल फॉर्म इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. यहाँ पर आपको इंसेंटिव्स के बारे में पता लगेगा. तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो यू शुड गो एंड यू शुड विजिट DGFT. कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो आजकल टैरिफ और इंसेंटिव्स को उनके बारे में पता ही नहीं होता. बिकॉज अगर कोई अननोन बंदे को आप हायर कर लोगे कि जिसको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो LC कर रहा है या वो कर रहा है, तो उसके बाद उसको उस बात की नॉलेज ही नहीं है, तो दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस इंसेंटिव्स. सो क्या होगा इसके लिए, जस्ट गाइज ये मैं आपको एज ए अब जो ट्रेनी भी देखेगा इस वीडियोज़ को, यू विल सी कि हाँ यार इतनी चीज़ें मेरे पास हैं, तो आई एम टू मच एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंट पर्सन. सो एनी इंटरव्यू एनी कंपनी आई कैन मैनेज. और अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए मैं बैठा ही हूँ, यूट्यूब चैनल आपके भाई का है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो जस्ट लिसन केयरफुली एंड अप्लाई एंड गो फॉर लर्निंग, go for the interview and select. So third one is a concessional benefit like custom duty. अभी कंसेशनल बेनिफिट का क्या मतलब होता है वो आपको अभी आगे डीप पता चलेगा. जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, कंसेशनल बेनिफिट लाइक कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लेना होता है एंड चेक एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड जर्मनी के बीच में, 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है. वेयर यू विल गो टू whom will contact like preferential tariff और नॉन preferential. preferential tariff का मतलब you have some concessional benefit in importing country, and non-preferential I mentioned the non-preferential, sorry it is not here mentioned, so it is the non-preferential tariff. So guys, non-preferential tariff you don't have any custom duty. So to whom will contact, so guys I have mentioned here preferential, so video is already started, so please just remember this is the non-preferential tariff. First is preferential tariff means concessional benefit you will get, non-preferential you will not get any benefit. To whom will contact, follow India Trade Portal DGFT के ही पोर्टल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट. तो वंस यू पुट द HS कोड इन DGFT India Trade Portal, you will see how many documents you need to provide, how many benefits you have, and document like SAPTA, like agreement, they provide the agreement. So उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनका कोई फॉर्म A1 होता है, ये चीज़ें मैं जैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, that is why I am not here mentioned. So please check my videos, follows, and what I am saying just listen carefully, that is why, क्योंकि ये देखने से आपको समझ नहीं आएगा, ये 2-4 ही पॉइंट है आपके लिए बनाने मुझे बहुत ज़रूरी पड़ते हैं, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा लेकिन आप समझोगे जब वो मेरी बातों को पूरा सुनोगे. तो गाइस दिस इज़ द सेकेंड स्लाइड, आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड. थर्ड स्लाइड इट इज शोइंग ड्यूटी ड्रॉबैक. अगर आपको आपका HS कोड मालूम है तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज आल्सो इंसेंटिव. सो प्लीज़ आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है, टू होम विल कॉन्टैक्ट, फॉलो कस्टम टैरिफ CBEC की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. तो आपको जब वंस यू फॉलो दिस टैरिफ यू विल सी कस्टम अलाउ
duty drawback incentive 1%, 2% as per your HS code or item, depend on your HS code and item. So that is why you just see carefully in which tariff your item is falling and which percentage. तो आपको ये मालूम होगा तो आप देखो कंपनी को इनिशियली बता रहे हो और कि ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिल पाएगा सर आपको इस आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए, यू गेट सर अदर इंसेंटिव फ्रॉम द DGFT। तो इस टाइप के आप जब अपनी मैनेजमेंट को जब इन्फॉर्म करोगे, आपकी मैनेजमेंट कहेगी यस मैंने अभी 4 लाख 5 लाख पे रखा है, इस बंदे के अंदर नॉलेज है, इसको 10 लाख 5 लाख ऑटोमेटिक बढ़ाओ, 4 लाख 2 लाख का पैकेज आपका बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। क्योंकि नॉलेज आपको देखो वास्ट नॉलेज है, मतलब मल्टीपल नॉलेज है, नॉट अ सिंगल वन, कि आपको ये नहीं कि छोटा मोटा नॉलेज है किसी एक पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी ने 4-5 लाख के पैकेज पे रखा है, बट अगर कंपनी को आप ये शो करोगे, कंपनी को आप बताओगे, अपने मैनेजर्स को बताओगे, तो दे विल हैप्पी यार मैंने बंदा बच्चा हायर किया। सो गाइस दिस इज़ द पॉइंट, इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके लर्निंग में, आपके ग्रोथ में बहुत काम आएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटरनली जॉब में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात कर लेना, आई एम हियर टू सॉल्व एनीथिंग। सो एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, लिखने का मेरा पर्पज़ यही है, कई चीज़ें मान लीजिए मेरे माइंड से अगर निकल भी गया तो उसके लिए मैंने जस्ट ये वर्डिंग डाली है लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि जितना मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से था कि इतनी चीज़ों को आपको ऑलमोस्ट यू शुड चेक इट आउट बिफोर द एक्सपोर्ट and you should inform your teams as well, and you should inform your manager and bosses as well. So guys, this is the thing you need to take care before export. GST, goods and service tax, this is the last one. Will export under GST or without GST? This is the question. So you need to check it out. Most important to check availability of input GST if available. अगर आपके पास input available है तो then you can export under GST to take the GST benefit via custom. So आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो यू जस्ट चार्ज GST एंड यू विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम द कस्टम। तो जो इनपुट आपका मान लीजिए पड़ा है बुक्स में और वो अवेल नहीं कर पा रहे बिकॉज सेल नहीं हो रही है और एक्सपोर्ट सेल ही एक लास्ट ऑप्शन है, सो देन यू शुड गेट फ्रॉम द कस्टम। इफ़ you don't have any availability on input and you don't want to pay any taxes, you just go export without GST. There are some rules here, then under GST, if not then without GST, and have some rules. So guys, there is some rules you just follow and documentation you should provide to them to get without GST. So I will let you know about this one also, so in brief in the next video. So guys, let's move in the final slide. Oh my god, this is the again common slides, so I will not take much time here. So guys, just subscribe and like this channel and share with the maximum people. If you have any query, so please WhatsApp on this number, email with your questions and share to maximum your colleagues. Thanks you guys for this day. Happy, goodbye, take care, bye bye.